Hello babies, how are you today? Enjoying it? Enjoying your studies? So we are doing the PA2 ka syllabus, chapter number 6, Gulliver's the travel stories, right? Till now we have done the phonic sound of double consonant. Dubbed, hopped, tapped, isn't it? And then we did types of sentences, that is statement, sentence, statement, question, exclamation, command or request, isn't it? Today we are going to start the story of Gulliver's Travel, and we are also going to discuss the word meanings side by side, right? That is the meaning of the words given in the story. And as we have always done in PA1 and term 1 also, what we are going to do, we are going to note down the meaning of the words in the notebook, right? Okay, so shall we start? Let's start, right? This is a story of Lemuel Gulliver, who found himself on a strange land of tiny people. So let's start reading, and I hope that you people are reading at home, because आप reading नहीं करोगे तो आपको परेशानी होगी आगे चलकर. So you should read, and today your homework will be you have to read the story at home. अभी तो मैं रीड कर रही हूँ, फिर बाद में आपको भी रीडिंग करनी है, या फिर आप मेरे साथ साथ भी रीडिंग कर सकते हो, राइट? Okay, let's start. Once Gulliver and his friends decided to go on a voyage. Voyage क्या होता है? Adventurous trip. ठीक है? What is voyage? Adventurous trip. Unfortunately, one night, a violent storm wrecked their ship. क्या हुआ? Violent storm मतलब बहुत खतरनाक तूफान. Wrecked का मतलब destroyed. See, है ना? So wrecked their ship. All his friends on board were drowned except Gulliver. क्या हुआ? एक रात को वो लोग एडवेंचरस ट्रिप पे निकले थे और अनफॉर्चुनेटली एक खतरनाक तूफान आया और उनकी शिप टूट गई. और क्या हुआ? All the friends on board were drowned मतलब गलीवर के सारे फ्रेंड्स जो शिप पे थे सब डूब गए, एक्सेप्ट गलीवर, सिर्फ गलीवर ही बच गया. He swam for hours to reach the shore. वो बहुत देर तक तैरता रहा ताकि वो किनारे तक पहुंच सके. He found himself on a new land. उसको कहाँ पे मिला? उसने अपने आप को एक नई धरती पे पाया. He looked around but could not see anything except small trees. उसने सब तरफ देखा लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ ट्रीज ही नजर आए, छोटे छोटे पेड़. He was completely exhausted. Exhausted मतलब full tired, पूरा थक गया था. Pain was running up and down his entire body. और उसका पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था. He soon fell into a deep sleep. क्या हुआ? फिर उसको बहुत गहरी नींद आ गई. When he woke up, he could only look up. जब वो जागा तो वो सिर्फ ऊपर ही देख सकता था. The bright sun prevented him from seeing anything. Prevented मतलब बचाना. जो सन था बहुत ब्राइट था तो वो उसको रोक रहा था किसी भी चीज को देखने से. He felt something moving across his legs and over his chest. उसको फिर फील हुआ कि कुछ चल रहा है उसके पैरों पे और उसके चेस्ट पे. He saw little men running all around him. उसको क्या दिखाई दिया? देखो, सी, छोटे छोटे बोने, है ना? बोने को क्या कहते हैं? We call them dwarfs. So he saw little men running up and down, all around him. One little man had got a tiny ladder and was climbing up to him. एक छोटा आदमी जो है उसके पास सीढ़ी थी और उसने वो सीढ़ी लगा के उसके ऊपर चढ़ रहा था. Gulliver rubbed his eyes in disbelief. गलीवर ने अपने आंखों को
जोर से मीचा और साफ किया, क्योंकि उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। डिसबिलीव का मतलब नॉट टू बिलीव, अनबिलीवेबल। द टाइनी मैन वॉज नो बिगर दैन गलीवर्स थंबनेल, और जो आदमी था वो गलीवर का थंबनेल, थंब क्या होता है? 10, अंगूठा, राइट? अंगूठे के नाखून के जितने बड़ा था वो इंसान। He climbed up to him and said, "You are in the land of Lilliput." उसने ऊपर चढ़ के क्या बोला? आप लिलीपुट्स के लैंड पे हो। तो जो छोटे छोटे बौने थे उनको हम क्या बोलते थे? We called them Lilliput. Those little people were called Lilliput. We are Lilliputians. लिलीपुट्स को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ लिलीपुट्स में लिलीपुट्स आर कॉल्ड लिलीपुटियंस। We are taking you to our emperor. एम्परर मतलब किंग, राजा। We will shoot you if you create any trouble. हम आपको अपने राजा के पास लेके जा रहे हैं और अगर आपने कुछ भी ट्रबल क्रिएट किया, शैतानी की, तो हम आपको शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। He was also amazed by their bravery. Amazed मतलब चौंक जाना, सरप्राइज, राइट? By their bravery. Bravery मतलब साहस। Because they climbed onto his body despite his great size. क्योंकि उन लोगों ने साहस दिखाया उसके बॉडी पे चढ़ने का, जबकि वो इतना बड़ा साइज का था, राइट? लेट्स टर्न द पेज। नेक्स्ट, अ ह्यूज वुडन स्ट्रक्चर विथ व्हील्स वॉज ब्रॉट। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसमें व्हील्स लगे थे। सी, अ वुडन स्ट्रक्चर विथ व्हील्स, राइट? इट वॉज ब्रॉट। उसके बाद क्या हुआ? The little man pushed Gulliver and managed to place him on the structure after much struggle. Structure मतलब ढांचा। फिर क्या हुआ? छोटे छोटे लोगों ने उसको बहुत मुश्किल से पुश करके, बहुत मुशक्कत से उन लोगों ने उसको उस व्हील वाले ढांचे के ऊपर चढ़ाया, राइट? He was pulled through the streets of Lilliput. फिर उन लोगों ने बहुत मेहनत से उसको खींच कर लिलीपुट शहर के रास्ते से लेकर जाने लगे। Many curious Lilliputians gathered on the street to see the sight. Curious मतलब जिज्ञासु, बहुत कौतूहल की दृष्टि से देखने वाले, जिज्ञासा के साथ, राइट? बहुत सारे लिलीपुटियंस जमा हो गए स्ट्रीट पे उसको देखने के लिए। Finally they arrived at Emperor's palace. Finally वो लोग राजा के महल पहुंचे। You are welcome here. If you want to stay here, you will have to promise that you will not harm my people and be ready to serve them. Want the emperor. राजा ने क्या बोला? You are welcome. आपका स्वागत है। If you want to stay here, अगर आपको यहाँ रहना है, you will have to promise that you will not harm my people. आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड बी रेडी टू सर्व देम, और उनकी सेवा करोगे, ऐसा एम्परर ने बोला। गलीवर नॉडेड एंड सेड, आई अग्री टू योर कंडीशन बट प्लीज अनटाई मी। गलीवर ने सर हिलाया एंड क्या बोला? ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर पहले मुझे खोल तो दीजिए। The emperor ordered his men to free Gulliver at once. राजा ने बोला अपने आदमियों को कि ठीक है, गलीवर को छोड़ दो, फ्री कर दो। Gulliver was freed. उसको खोल दिया गया। He was generously provided with food and water and a house was built for him. Generously मतलब विनम्रता के साथ। उसको खाना पानी और उसके लिए घर बनाया गया। In return, Gulliver was helping Lilliputians with many small tasks. और बदले में क्या करता था? गलीवर भी लिलीपुटियंस को हेल्प करता था छोटे छोटे कामों में। Soon Gulliver got used to life and started living happily in Lilliput. अब क्या हुआ? गलीवर को उस लाइफ की आदत पड़ गई और वो बहुत खुशी खुशी लिलीपुट शहर में रहने लगा। One day, the neighboring kingdom of Bifusu declared war on Lilliput. एक दिन पड़ोस के राजा ने और उसकी राज्य ने लिलीपुट शहर के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। द किंग ब्लिफोसू सेंट 100 शिप टू अटैक लिलीपुट।
जो राजा था ब्लेफोस्कू पड़ोसी किंगडम का, उसने 100 शिप्स भेजे लिलीपुट पे अटैक करने के लिए। द एम्परर ऑफ लिलीपुट रिक्वेस्टेड गलिवर टू हेल्प द किंगडम। फिर जो वहाँ का लिलीपुट राज्य का जो राजा था, उसने गलिवर को हेल्प करने के लिए बोला। द एम्परर सेड, डोंट लेट अस डाउन नाउ गलिवर, वी नीड योर हेल्प। राजा ने बोला, गलिवर हमें आप तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ हमें निराश नहीं करना। गलिवर assured the emperor for helping the kingdom and started working on a strategy. गलिवर ने आश्वासन दिया, प्रॉमिस, सी assured मतलब प्रॉमिस, कि वो राजा को हेल्प करेगा। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब प्लान, वो प्लान बनाने लगा। He took a long rope, tied all enemy ships together and dragged them into water. उसने एक लंबा सा रस्सी लिया और सारे एनिमी की शिप्स को एक साथ बांध के खींचकर पानी में फेंक दिया। He kept them tied until the army of Blefuscu accepted their defeat. और तब तक बांध के रखा जब तक ब्लेफोसो की आर्मी ने अपना हार स्वीकार कर लिया। गलिवर used his mind and power to defeat the army of Blefuscu. उस गलिवर ने क्या किया, अपना दिमाग और ताकत यूज किया ब्लेफोसो की आर्मी को हराने के लिए। The king of Blefuscu pleaded for peace and agreed between the two kingdoms. ठीक है, ब्लेफोसो ने बोला ठीक है, मुझे शांति चाहिए दोनों किंगडम्स के बीच में। The emperor of Lilliput agreed and were rewarded and even rewarded Gulliver for his help. जो लिलीपुट का राजा था, उसने बोला ओके ठीक है, हम दोनों राज्य में शांति रखेंगे, और उसने गलिवर को रिवॉर्ड दिया, मतलब इनाम दिया। Later on, Gulliver lived in Lilliput for many years. फिर गलिवर बहुत सालों तक लिलीपुट शहर में ही रहा। Fine, so this was the story of Gulliver. That's all for today. We will do the question answers tomorrow.